Welcome to my YouTube channel, The Mathematics. Now, we were solving question number 6. Name the types of quadrilateral formed, if any. These are the coordinates of quadrilaterals are given. The second part is these four coordinates are given, and we have to, using distance formula, we have to find the name of the quadrilateral of which these belongs. So let us try to solve this. Let a is equal to -3 5, b is equal to 3 1, and c is equal to 0 3, and d point is equal to -1 -4. Here we assign the name of the coordinates. Now what we will do, we will find the distance formula. So first of all, we will write the generalized formula for these to find the distance between these 2 points. The formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, this whole under root. This is the distance formula. By using this distance formula, we will find the distance between these AB, BC, CD and DA points, and we will check whether what type of quadrilateral it is. So for AB mod, distance between point AB, we have to find here x1 is equal to -3, y1 is equal to 5, x2 is equal to 3 and y2 is equal to 1. Okay, x1 y1 x2 y2. So what about AB, distance between point AB, that is AB mod is equal to x2 minus x1, 3 minus of -3 whole square plus 1 minus 5 whole square. So this can be written as, this is 3 plus 3 whole square and plus this is -4 whole square. Now we will solve this. This is 6 square plus 4 square, that is this is equals to 36 plus 16, and it is equal to 52 under root. Under root 15 can be written as, that is 2 under root 13. Okay, give this number 1. Now coming to second, that is BC mod, distance between coordinates B and C. So here the coordinates of B will be x1 y1 and coordinate C will be x2 y2. So x1 is here is 3, y1 is here 1, and x2 is 3 0, and y2 is 3. So BC mod is equals to square root of 0 minus 3 whole square plus 3 minus 1 whole square. So this is equal to 3 square plus 2 square. This is equal to 9 plus 4 is equal to under root 13. Give this number 2. Coming to CD mod, CA. Let us take CA mod. For CA mod, we have the coordinate of C will become x1 is equal to 0, y1 is equal to 3, x2 is equal to -3, and y2 is equal to 5. So if we calculate this, then CA mod is equals to, that is distance between these 2 points is -3 minus 0 whole square plus 5 minus 3 whole square. So this is equal to 3 square plus 2 square, which is equal to 9 plus 4 under root is equal to under root 30. नंबर 3. हम अगर यहाँ देखें तो 1 2 3 से क्या है कि दो जो डिस्टेंसेस हैं कोऑर्डिनेट्स के बीच का, उनका डिस्टेंस जो है वो उनका सम जो है वो थर्ड के इक्वल है. ये अंडर रूट 13 है, अंडर रूट 13 is equal to 2 under root 13 है. So from 1 and 2 what we have, that is BC mod plus CA mod, distance between BC plus CA is equal to AB mod, that is under root 13 यहाँ था, under root 13 है, और this is equal to 2 under root 13. अब ऐसा है कि 3 पॉइंट में डिस्टेंस बिटवीन एनी टू जो है वो थर्ड के इक्वल है, तो वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर्स होंगे. दिस इम्प्लॉइज देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर. ए बी सी कैसे आगे, कोलिनियर, एंड डू नॉट फॉर्म एनी
क्वाड्रिलेटरल। तो जो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है तो वो किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे। तो कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द 4 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। हमने सबको नाम दे दिए हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमें पता है, ये आपने पहले ही लिख लेना है। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे हम यूज करना चाहेंगे, ठीक है। सो ए बी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स ए बी हमें फाइंड आउट करना है। सो x1 है ये x1 y1, x2 y2। x1 मेरे पास 4 है, y1 मेरे पास 5 है, x2 इज 7 एंड y2 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब बारी आई मेरे पास ए बी डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कोऑर्डिनेट्स ए बी मॉड निकालने की। दैट इज 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस, प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। This can be written as 3 square plus 1 square, means this is 9 plus 1. This can be written as under root 10. Give this number 1. तो पहला मेरे पास जो डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स रूट 10 आ गया। अब बात है BC मॉड की। तो BC मॉड निकालना है। B के कोऑर्डिनेट x1 y1, x1 है 7, y1 है मेरे पास 6, x2 है मेरे पास 4 और y2 मेरे पास है 3, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द BC मॉड? BC mod is equal to, this is 4 minus 7 whole square plus 3 minus 6 whole square. So this is equal to minus 3 whole square plus minus 3 whole square. This can be written as 9 plus 9 under root is equal to under root 18. That is, this can be written as 3 under root 2. Give this number 2. CD mod निकाल लेते हैं। What about CD mod? C के कोऑर्डिनेट मेरे पास x1 y1 बन जाएंगे। x1 इज 4, y1 इज 3। D के कोऑर्डिनेट दैट इज x2 मेरे पास होगा 1 और y2 मेरे पास हो जाएगा 2। Coming to calculate CD mod, this is equals to 1 minus 4 whole square plus 2 minus 3 whole square. This is minus 3 square plus minus 1 square whole under root, that is 9 plus 1 is equal to under root 10. Give this number 3. DA mod की बात करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो D के कोऑर्डिनेट मेरे पास x1 है 1, y1 है मेरे पास 2, x2 की बात करें तो दैट इज 4 एंड y2 है मेरे पास 5। D के x1 y1, A के x2 y2। तो DA mod is equal to, distance between these 2 points is equal to, that is 4 minus 1 whole square, this minus this, plus 5 minus 2 whole square, that is 3 square plus 3 square under root, that is 9 plus 9 under root is equal to under root 18 is equal to 3 under root 2। इसे मैं नंबर 4 दे रही हूँ। अगर मैं यहाँ ओवरऑल देखूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 1 और 3 जो है वो अंडर रूट 10 है और 2 और 4 जो है वो इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या क्या है मेरे पास, दैट इज AB डिस्टेंस इज इक्वल टू CD डिस्टेंस, ठीक है। एंड और क्या है मुझे मेरे पास पता, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू दूसरी साइड है मेरे पास DA। दो साइड्स जो है ऑपोजिट, अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म करूं, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास है ABCD, तो AB जो है वो CD के इक्वल आ रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस वन, और BC जो है वो DA के इक्वल आ रहा है। अब चेक क्या करना है मुझे कि इनके डायगोनल्स चेक करने हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल आ रही है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, लेट अस चेक देयर डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स अनइक्वल हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, और अगर मेरे पास AC इज नॉट इक्वल टू BD आता है और डायगोनल्स अनइक्वल आते हैं तो ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स है। सो लेट अस स्टार्ट विद AC मॉड। AC मॉड मुझे निकालना है। A के कोऑर्डिनेट मेरे पास बन जाएंगे, दिस इज 4 और y1 हो जाएगा 5। C के कोऑर्डिनेट्स के लिए x2 है मेरे पास 4 और y2 है मेरे पास, दिस इज 3। तो AC मॉड अगर मैं निकालूं, डिस्टेंस बिटवीन AC दैट इज 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। गिव दिस नंबर 5, ठीक है। अब मैं निकालूंगी BD मॉड। BD मॉड, B के कोऑर्डिनेट x1 y1, x1 इज हियर 7, y1 इज हियर 6,
x2 की बात करूँ तो d के कोऑर्डिनेट 1 है और y2 है मेरे पास 2। तो कमिंग टू बी डी मॉड ये मेरे पास बन जाएगा दैट इज 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। दिस इज 36 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 52। गिव दिस नंबर 6। अब मैं 5 और 6 को देखूँ तो एक 2 है और एक अंडर रूट 52 है। सो दिस इम्प्लॉइज दैट इज AC मॉड इज नॉट इक्वल टू BD मॉड। डायगनल्स क्या है, अनइक्वल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हों लेकिन उसके डायगनल्स अनइक्वल हों, दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज ए पैरेललोग्राम। सो यहाँ हम सम अप करेंगे, हेंस ABCD is a parallelogram. Hence ABCD is a parallelogram. So coming to question number 7, find the points on the x-axis which is equidistant from this and this. देखिए जो x एक्सिस पे पॉइंट होता है ना, पहले क्या याद रखना है उसका, वो उसकी नेचर कैसी होती है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम जो एक जनरल पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेंगे वो कैसा लेंगे, x,0 वाला। अगर ऐसा ही क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में आए कि फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो याद रखना है कि y एक्सिस पर आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसे हम 0,y बोलेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें, और हमें इस पॉइंट से, ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है इन दोनों से। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस पे कैसा पॉइंट लेंगे, x इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे लेट p x, 0 बी अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, बी अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज, एक x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लिया हमने, x, 0 पॉइंट लिया। बी अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, जो हमें स्टेटमेंट दी है ना उसी से बात करेंगे, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। अब देखिए साथ में क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। फ्रॉम a इज इक्वल टू 2 माइनस 5 एंड b इज इक्वल टू -2 9 फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। ये हमें कंडीशन गिवन है। हमें एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट भी पता होता है, वो पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि ये जो p है a से और b से, दैट इज PA मॉड इज इक्वल टू PB मॉड। इस p का डिस्टेंस a से और p का डिस्टेंस b से वो इक्वल है, इसीलिए इसका नाम है दे आर इक्विडिस्टेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इट मीन्स उनका अगर हम स्क्वायर ले, चलिए p, इट मीन्स PA स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू PB स्क्वायर, है ना। अगर सिंगल है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब PA स्क्वायर था क्या, बेसिकली यहाँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रही हूँ। वी विल यूज द फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ऐसा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन केस ऑफ PA मैं यहाँ पे इसे नंबर 1 दे रही हूँ। मैं PA को फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से लिखेंगे, व्हाट इज x1, p के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मेरे पास x1 y1 बन जाएंगे और a के x2 y2। तो x1 है मेरे पास x और y1 मेरे पास है 0, x1 y1। उसी तरह से x2 a के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 2 एंड y2 है मेरे पास -5। तो PA मॉड मेरे पास बनने वाला है, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 होल स्क्वायर, मीन्स 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5, इसे हम 25 कर ले होल अंडर रूट, गिव दिस नंबर 2। ठीक है, अब कमिंग टू PB मॉड, PB मॉड को मुझे फाइंड आउट करना है। P के कोऑर्डिनेट फिर से मेरे पास जो होंगे वो x1 बनेगा x और y1 मेरे पास बन जाएगा 0, x2 है मेरे पास -2 b के कोऑर्डिनेट और y2 है 9। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, PB मॉड विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया,
इस नेगेटिव साइन को बाहर लेके उसका स्क्वायर कर दिया तो प्लस बन गया। तो इसी में 2 + x होल स्क्वायर भी कर सकती हूँ। क्या किया, -2 - x होल स्क्वायर है, ध्यान से सुनना है। मैंने -1 स्क्वायर बाहर ले लिया, यहाँ पे मेरे पास 2 + x माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास क्या बचा 2 + x। ठीक है, तो एंड प्लस 9 9 9 सा 81, इसे मैं नंबर 3 दे रही हूँ। आप चाहें, अगर आपका हाथ अच्छा है तो ये दोनों स्टेप आप डायरेक्ट वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। वो बच्चे जिन्हें नहीं पता चलता उनके लिए मैंने इन स्टेप्स को इस तरह से एलेबोरेट कर दिया है। सो अब लिखेंगे हम पुट 2 and 3 in 1। मेरे पास ये 2 की इक्वेशन है, पी मॉड, ये पीवी मॉड है, और मैं इसे इस 1 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सो है क्या मेरे पास, दैट इज 1 है मेरे पास, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यही है ना। तो अब क्या करेंगे, मुझे पता है स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाते हैं, तो पी ए स्क्वायर बन जाएगा 2 - x होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 2 + x होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। अब क्या है कि अंडर रूट को मैंने स्क्वायर से कैंसिल कर दिया है। अब इसे ओपन करते हैं, मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ a - b होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर। a - b is a square plus b square minus 2ab and this is a square plus b square plus 2ab, ऐसा ही रहता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज 4a square plus b square minus 2ab plus 25 is equal to a square plus b square and plus 2ab, that is 4x plus 81 like this। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, सेम साइन है, कट जाएंगे, 4 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास आने वाला है, दिस इज -8x इज इक्वल टू 56। मैं इसे इधर ले जाऊंगी तो 81 - 25 हो जाएगा, इधर जाके नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू -56/8, दैट इज 7, सो x इज इक्वल टू -7। सो जो हमने पॉइंट लिया था ना, पॉइंट ऑन x एक्सिस कैसा लिया था, दैट x, 0, तो ये पॉइंट ऑन x एक्सिस कैसा आया, x की वैल्यू आई -7, सो द पॉइंट इज -7, 0। सो यहाँ हम अब सम अप करेंगे, दिस एम्प्लॉइज p -7, 0 बी पॉइंट ऑन x एक्सिस, बी पॉइंट ऑन x एक्सिस। ठीक है, so coming to question number 8, find the value of y for which the distance between the points pq is 10 units। अब देखिए जो p है उसमें 2 - 3 है और q में y इन्वॉल्व है, तो ये वैल्यू y की हमें फाइंड आउट करनी है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, अब डिस्टेंस हमें ऑलरेडी मेंशन है कि वो 10 यूनिट है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन है हमें यहाँ पे, गिवन दैट इज p इज इक्वल टू 2 - 3 एंड q इज इक्वल टू 10, y, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज pq mod, व्हाट इज गिवन टू अस, pq mod इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये हमें गिवन है। PQ mod के लिए मुझे पता है मैं डिस्टेंस फार्मूला क्या लगा यूज करने जा रही हूँ, दिस इज √ of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, कोऑर्डिनेट p के जो वो x1 y1 बन जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 10 एंड y2 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये चीज़ें पता है। नाउ व्हाट इज पी क्यू मॉड इज इक्वल टू 10, अप्लाई करें इस तरफ, ये बन जाएगा x2 - x1 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 कर लेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब अंडर रूट हटाना है तो क्या करते हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अंडर रूट कैसे हटता है, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास बनने वाला है, दिस इज 8 स्क्वेयर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, अंडर रूट हटा रही हूँ मैं बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड से, तो ये बन जाएगा 100, इस साइड स्क्वेयरिंग की तो क्या बन गया 100। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस दिस इज 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab वाला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज, this is y square plus 6y and plus
73 इज इक्वल टू 100। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को भी इधर ले आते हैं, मेरे को एक क्वाड्रेटिक दिखनी शुरू हो गई है, सो इट विल बिकम -27 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर का वो कितना है 27। 27 के ऐसे दो फैक्टर्स जो ये बने, दिस इज वाई स्क्वायर, 9 3s are 27, 9y minus 3y minus 27 is equal to 0. This is 9 3s are 27 and 9 minus 3. So this can be written as, this is, if we take y common, this is y plus 9 minus 3 common ले रही हूँ, again y plus 9 is equal to 0. So this is y plus 9 and this is y minus 3 is equal to 0. So y, the product of two numbers is equal to 0, either one of them should be 0. So ये बन जाएगा y is equal to -9 और y is equal to 3. तो y की ये टू वैल्यूज आई हैं, दैट इज यहाँ जो हमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो वो इन प्लेस ऑफ y इट कैन बी -3 और -9 or 3. So this is the way how we solve this question.